Good morning, students. Today we will be starting with our EVS chapter, that is Environmental Studies. Today I am starting chapter number 6, Water. Let us see. Now see this, first we have to do this exercise. Look at the pictures given below and write the uses of water. You may use the help box. What are these pictures given? हमको water कहाँ पे काम आता है? What are the uses of water? उसके pictures है और help box में दिया है हम water कहाँ कहाँ पे use करते हैं. हम लोग water मतलब पानी कहाँ पे use करते हैं? C number 1. We use water for drinking. Right, number 1. Drinking. We use water for drinking. Then what is, see this picture? Water कहाँ पे use होता है? Water is used for cooking. Mother uses water for cooking. Then see this picture. This boy is bathing. We use water for bathing. Right over here. Then number 4. What else do we use water? See this picture. Here the lady is washing clothes. We need water for washing clothes. Then see number 5. Here what is the lady doing? She is cleaning utensils. Utensils मतलब बर्तन. बर्तन धोने के लिए भी हमको पानी चाहिए. Yes, we need water for cleaning utensils. Then see the next one. Here see the picture. We need water for putting out fire. Putting out fire means अगर कहीं पे fire होगा, आग लग जाएगी तो उसको निकालने के लिए हमको water चाहिए. We need water for putting out fire. Okay. Now let us start with the reading. See, ये सब activities में हमको water चाहिए. We need water for all these activities. All living things need water. We cannot live without water. All living things. Living things means all the human beings, man, woman, then plants, animals, सबको water चाहिए. हम water के बगैर नहीं रह सकते. We cannot live without water. Plants and animals also need water. Plants और animals को भी water चाहिए. अगर आप plants में water नहीं डालोगे तो plants grow करेंगे? No. जैसे हमको water चाहिए पीने के लिए वैसे animals को भी चाहिए. Yes. Clean water has no color, taste and smell. जो clean water होता है, clean means साफ, जो साफ water होगा उसका कोई color नहीं होता है. Water has no color, taste भी नहीं होगा and smell भी नहीं होगी. Sources of water. Sources means हमको पानी कहाँ से मिल सकता है, कहाँ से मिलता है? From where do we get water? The upper parts of mountains are covered with snow. During summers, the snow on the mountains melts and changes into water. The upper parts of mountains. Upper parts मतलब जो सबसे ऊपर का part होता है. किसका? Mountains. Mountains means जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उसका upper part किससे covered होता है? Snow से.
बर्फ से कवर्ड होता है। फिर समर्स में कितनी गर्मी होती है, हमको कितनी गर्मी लगती है, तो उस गर्मी से क्या होता है, जो स्नो होता है माउंटेन्स में वो मेल्ट हो जाता है, वो पिघल जाता है। आप फ्रीजर में से अगर बर्फ निकाल के बाहर रखोगे तो वो कैसे पिघल जाएगा, पानी बन जाएगा, है ना। अगर फ्रीजर में से बर्फ निकालेंगे, आइस क्यूब निकालेंगे, तो वो कैसे पानी बन जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, वो पिघल जाएगा। वैसे ही जो माउंटेन्स के ऊपर स्नो होता है, वो समर में गर्मी से क्या होता है, वो पानी मेल्ट हो जाता है, वो बर्फ मेल्ट हो जाता है, स्नो मेल्ट हो जाता है, क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। देन दिस वाटर comes down in the form of streams and rivers. Rain is the main source of water. It fills the lakes, ponds, rivers and streams. फिर जो स्नो मेल्ट होके जो पानी बन जाता है वो नीचे कैसे आता है, क्योंकि वो तो माउंटेन्स पे होता है ऊपर। स्ट्रीम्स मतलब जो झरना होता है। देन रिवर्स, जो नदी होती है उसमें पानी पूरा उस नीचे आ जाता है। और फिर हमको पानी कैसे मिलता है, रेन से। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। अभी थोड़े दिन पहले कितनी बारिश आई थी, देयर वाज सो मच ऑफ रेन, हर जगह पानी भर गया था। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। इट फिल्स द लेक्स, ponds, rivers and streams. उससे लेक्स, नाउ ऑल वी ऑल नो, हमने सब फोटो में वीडियो में देखा था, लाखोटा लेक जो है हमारा, वो लेक कितना पूरा पानी से भर गया था। वाई, बिकॉज ऑफ रेन। रेन से लेक्स, ponds, rivers and streams. See the picture. बिकॉज ऑफ रेन लेक, फिर पॉन्ड, रिवर्स, सब पानी से भर जाता है। Some rainwater goes under the soil. It collects as underground water. We get this underground water by digging wells and tube wells. We also use hand pumps to draw underground water. अगर रेन वाटर लेक में या पॉन्ड में नहीं जा रहा है तो वो कहाँ जाएगा, अंडर द सॉइल, मतलब जो जमीन है उसके नीचे जाएगा। और वो कैसे कलेक्ट होगा, अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर क्यों कहते हैं हम उसको, क्योंकि वो जमीन के नीचे कलेक्ट होता है वो पानी। और वो अंडरग्राउंड वाटर हमको कैसे मिलेगा, जो हमारे घर पे पानी आता है वो कहाँ से आता है, पूरा साल तो रेन्स नहीं आती है, तो जो रेन्स आई होती है वो पूरा वाटर अंडरग्राउंड स्टोर होता है। और फिर वेल्स, सी द पिक्चर, वेल्स और ट्यूबवेल्स, इससे पानी हमको मिलता है। और हम हैंड पंप, सी दिस पिक्चर, हम हैंड पंप भी यूज कर सकते हैं रेन वाटर, अंडरग्राउंड वाटर को निकालने के लिए। नाउ सी दिस, टिक द करेक्ट आंसर। We get water from, हमको वाटर कहाँ से मिलता है, रिवर्स, हैंड पंप्स या बोथ ऑफ दीज। सी ऊपर देखो, अगर रिवर्स में वाटर होगा तो भी हमको मिलेगा, और अगर अंडरग्राउंड वाटर हमको निकालना है तो हम हैंड पंप भी यूज कर सकते हैं। तो व्हाट इज द आंसर, बोथ ऑफ दीज, दोनों से हमको पानी मिल सकता है। देन rain water that goes under the soil collects as, जो रेन वाटर, जो बारिश का पानी सॉइल के नीचे, जमीन के नीचे जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉन्ड वाटर, नो, अंडरग्राउंड वाटर, यस, इट इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। ओके, नाउ स्टोरेज ऑफ वाटर। स्टोरेज मतलब हमको स्टोर करके, संभाल के हम पानी कैसे रख सकते हैं, वी शुड स्टोर वाटर so that we can use it later.
हमको पानी स्टोर करके रखना चाहिए। सब पानी तो हम एक साथ यूज नहीं कर सकते। अगर हमको बाद में पानी यूज करना है तो हम उसको स्टोर करके रखेंगे। We can store water in different types of containers at home. हम अलग अलग टाइप के कंटेनर्स में हम स्टोर कर सकते हैं पानी। In some buildings, water is stored in large water tanks. Colonies have large overhead tanks for storage of water. अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है तो उसमें बड़े बड़े टैंक्स होते हैं। कॉलोनीज में ओवरहेड टैंक्स, ऊपर बहुत बड़े बड़े टैंक्स होते हैं वाटर स्टोर करने के लिए, जिससे हमें पूरा दिन वाटर मिलता है। सी दिस इज अ बकेट, a drum, a tank. These are called the containers to store water, जिसमें हम water store कर सकते हैं। Now, see these points. Save water. हमको water save करना चाहिए। हम कैसे सेव कर सकते हैं water को? Number 1, do not leave the tap open while brushing teeth. जब हम सुबह टीथ ब्रश करते हैं तब हमको नल ओपन नहीं रखना चाहिए। जितना टाइम हम ब्रश कर रहे हैं उतना टाइम हमको टैप क्लोज कर देना चाहिए। फिर जब हमको पानी चाहिए तब नल ओपन करना चाहिए। Number 2, turn off taps properly to avoid leakage. Tap means नल, हमको नल प्रॉपरली बंद करना चाहिए जिससे लीकेज ना हो। लीकेज मीन्स अगर कहीं से नल टूट गया होगा या फिर कहीं पे पाइप में होल होगा तो उससे पानी लीक होगा, उससे पानी बाहर निकलेगा जिससे पानी वेस्ट होगा। तो हमको अच्छे से नल बंद करना है जिससे पानी वेस्ट नहीं हो। Number 3, use a bucket and a mug to take a bath. हमको बात करने के लिए बकेट और मग यूज करना चाहिए। Number 4, collect and store rainwater in buckets, drums and tanks. This can be used for washing, cleaning and watering plants. हमको पानी कलेक्ट करके कहाँ स्टोर करना चाहिए? रेन वाटर, जब बारिश आती है तो हमको वो पानी कहाँ स्टोर करना चाहिए? सी दिस पिक्चर ऊपर दिया हुआ है, बकेट में, ड्रम्स में और टैंक्स में। फिर ये वाटर हम बाद में कहाँ पे यूज कर सकते हैं? वॉशिंग करने के लिए, क्लीनिंग, देन वॉशिंग मतलब वी कैन वॉश क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, बर्तन हम उससे क्लीन कर सकते हैं, और वाटरिंग प्लांट्स में भी हम वो पानी डाल सकते हैं। देन नंबर 5, डू नॉट थ्रो द लेफ्ट over water in your bottle. Use it to water plants. जब भी आप बॉटल में पानी लेके जाते हो या फिर जब आप पहले स्कूल आते थे वाटर बॉटल लेके, तो अगर आपका बॉटल में पानी बच जाएगा तो आपको वेस्ट नहीं करना है, फेंकना नहीं है वो पानी। यूज इट टू वाटर प्लांट्स। अगर कहीं पे प्लांट्स है, ट्रीज है, तो आपको वो पानी उसमें डाल देना है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर नंबर 6 वाटर। ये पूरा चैप्टर 2 times रीड करना है। ओके ऑल ऑफ यू, और ये वीडियो भी 2 times देखो, अच्छे से समझो ये पूरा चैप्टर। एंड देन ये जो एक्सरसाइज है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके एंड आज मैं इसके हार्ड वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स जो आपको नोटबुक्स में लिखने हैं, दैट आई विल सेंड टुडे इन 10 सो राइट दैट। और ये चैप्टर पूरा रीड करके अच्छे से समझना है। ओके स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।